हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो आपके समक्ष टॉपिक प्रस्तुत हुआ है कई मानने में काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक एग्जाम व्यू से। ठीक है, इसमें हम हर एक बात पे विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और वो सारे जो है पहलू पर विचार करेंगे जो अब तक अछूता था। तो चलिए देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। डिस्कशन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर here class 10 CBSE NCERT here. You know that NCERT social science here a question paper. Question paper is the most important. Tripan Study Center decide to discuss a most important question for the exam view here. You know that the next question arrive here that's important. A question here, a worker in an urban area who was the working in a small factory was not paid his wage properly. He was forced to the work extra hour under poor working condition. There was no job security. Recently, he lost his job and was found selling electrical item is a postcard. Analyze the role of the government in the protecting the workers working in the unorganized sector. You know that that's the most important question from exam view. Let's see their answer. The following are the way in which their workers in the unorganized sector can be protected by the government. You know that is the most important duties here. Government, there is an unorganized sector can be protected by the government. That's the most important here. You know that first point here, the small factory must be registered by the government and have to be follow its rules and regulation which are given in the various laws such as the Factories Act and Minimum Wage Act and Payment Gratuities Act and Shop and Establishment Act, etc. This is the most important here. A small factory by the registration by the government and the follow the rule and regulation. And second here, the government can provide to the loan to the help unemployed educated youth to be start their own business. That's important here. The government can be provide to the loan to the help to unemployed educated youth to start their own business. And the next year, the workers are supposed to be get a medical benefit and under the law the factory manage has to ensure facilities like drinking water and safe working. You know that's important here. The medical benefit is provided in this rule regulation. That's the most important point here. यहाँ पर जो हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं क्लास 10 CBSE NCERT के अंतर्गत सोशल साइंस का, और हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो अगला आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन है कि शहरी क्षेत्र में एक श्रमिक जो एक छोटी सी फैक्ट्री में काम कर रहा था, उसको मजदूरी ठीक से नहीं दी गई थी। उसे खराब कामकाजी परिस्थिति में जो है अतिरिक्त घंटे काम कराने के लिए मजबूर किया गया था और नौकरी की कोई सुरक्षा भी नहीं थी। हाल ही में उसने अपनी नौकरी खो दी थी और नौकरी की एक और पशु कार्ट में बिजली का सामान बेचते हुए पाया गया। असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की भूमिका का विश्लेषण करें। देखिए क्वेश्चन बेशकली बड़ा है, लेकिन यहाँ पर आपको पता है CBSE इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल ही साफ शब्दों में है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार ने कौन कौन से रूल रेगुलेशन लगाए हैं, उस पर आपको एनालाइज करना है। क्योंकि आज बहुत से छोटे छोटे जो है कारखाने हैं जहाँ पर और फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर जो है श्रमिकों की सुरक्षा मुहैया नहीं हो रही है। उनको जितना काम के लिए मजदूरी दी जाती है उसे कई अधिक घंटे काम करवाए जाते हैं, और जब समय पड़ती है तो उनको काम से मुक्ति भी दे दी जाती है, यानी छटनी भी की जाती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा जो है कुनीति है, जिनके कारण मजदूरों के कई बार जो है भूखमरी का शिकार होना पड़ता है। लेकिन सरकार इसके अंतर्गत कई रूल रेगुलेशन बनाए हैं कि कोई भी व्यक्ति को ऐसे ही काम से निकाला नहीं जा सकता। काम से निकालने के लिए उनको कुछ बातों को फॉर्मुलेशन करने पड़ते हैं। तो ये बहुत सी बातें होती है जो सरकार ने छोटे छोटे फैक्ट्रियों पर लगाई है, लेकिन देखा जाए तो ये सिर्फ कागजी बातें रह जाती है। लेकिन इसमें जो है श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कोई भी जो है बात यहाँ पर सत्य सिद्ध नहीं होती है।
इसलिए एग्जामिनर ने यहाँ साफ शब्द में क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए ऊपर का स्टेटमेंट एक बात को दर्शा रही थी और नीचे का स्टेटमेंट जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रही है कि असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा में सरकार की क्या भूमिका है। तो ये क्वेश्चन साफ है। चलिए अब इसको आंसर का भी हम जो है मुहैया करें और देखें कि आखिर आंसर किस बात की तरफ जो इशारा करता है और भारत सरकार ने जो है श्रमिकों की कौन कौन सी सुविधाएं प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर अगर उत्तर पर हम आंसर पे ध्यान दें तो कहते हैं निम्नलिखित तरीकों से निम्न असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार द्वारा संरक्षित किया जा सकता है। असंगठित क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कि नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसको सरकार नहीं चलाती है, प्राइवेट लोग चलाते हैं। और जैसे सरकार, मैंने आपको बताया था कि सरकार जो है हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, ये उनकी बात की जा रही है। मैंने आपको बताया था कि सरकार में एक समय सीमा होती है हर चीज़ों का, लेकिन प्राइवेट सेक्टर जो है अपनी जो है हमेशा लाभ के लिए जो है लोगों का इस्तेमाल करती है। अगर लाभ न हो या काम अधिक हो जाए तो लोगों से एक्स्ट्रा काम भी करवाए जाते हैं, लेकिन उसका जो है पूरा बेज उनको नहीं मिल पाती है। और ये सब प्राइवेट सेक्टर के कारण हुआ है। भारत में जिस प्रकार से सभी चीज़ों को प्राइवेटाइजेशन की जा रही है, इस तरह की समस्या होना अब साधारण बात रह जाएगी, क्योंकि जिस तरह से भारत सरकार ने हर चीज़ को प्राइवेट के हाथों में सौंप रहे हैं और लोग भी नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसका जो है उनको ही जो है खमामा भोगना पड़ सकता है। और इसी के अंतर्गत यहाँ पर पहला पॉइंट बताता है कि छोटे कारखानों को सरकार द्वारा पंजीकृत होना चाहिए। ये तो बात सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी कारखाने खोले जाते हैं तो सरकार के द्वारा रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है कि सरकार से आपको रजिस्ट्रेशन यानी पंजीकृत कराना जरूरी है। और इसके नियम और विनियम का भी पालन करना होगा जो सरकार आपको मुहैया कराती है। जो विभिन्न कानून जैसे कि फैक्ट्री अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ग्रेजुएटी भुगतान अधिनियम, दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम आदि में दिए गए हैं। कहते सरकार ने हर क्षेत्रों में अपने रूल रेगुलेशन बनाए हैं, लेकिन इसका रूल रेगुलेशन का कितना लोगों पर असर पड़ती है इसका ना तो आप खुद ही समझते होंगे। अगर इतनी सरकार के रूल रेगुलेशन होता तो इतने सारे श्रमिकों के साथ जो है शोषण नहीं हो पाता। तो ये तो साधारण सी बात है। दूसरे पॉइंट की तरफ अगर नज़र करें तो सरकार बेरोजगार शिक्षित युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए ऋण प्रदान कर सकती है। चलिए ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सरकार जो है बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है अवसर देती है और इसके लिए जो है ऋण देती है और इससे जो होता है प्रोत्साहित बढ़ता है। तो भारत सरकार के द्वारा उठाया गया ये काफ़ी महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, तो ये काफ़ी महत्व रखता है। यदि अगली पॉइंट पे हम बात करें तो श्रमिकों को चिकित्सक लाभ मिलना चाहिए। हर प्राइवेट सेक्टर को जो है हर श्रमिकों को चिकित्सा लाभ देने की प्रावधान की गई है। कानूनों के तहत फैक्ट्री प्रबंधक को पीने के पानी और सुरक्षित कामकाज जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करनी होगी। सरकार इस पे देखिए सभी चीज़ों पे जो है रूल रेगुलेशन बना रखी है, लेकिन जो यहाँ पर छोटे कारखाने हैं इन बातों का अनुसरण नहीं करती है और इसी कारण से जो है बहुत सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन देखा जाए तो एग्ज़ाम व्यू से महत्वपूर्ण रहता है कि सरकार ने जो है श्रमिकों की सुरक्षा के लिए कौन से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, तो ये काफ़ी महत्व क्वेश्चन रखता है। नो दैट्स इम्पोर्टेंट द इम्पोर्टेंट दैट आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट हियर। द क्वेश्चन हियर मिस्टर पवन a village had wanted to be create a more job opportunity to be increase the income of the people of his village under the Manrega Act. Suggest any three activities so that Mr. Pawan could be instead in his village. You know that is the most important question here. Under the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act mean a Manrega. मनरेगा इज फुल फॉर्म here महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। द विलेज हेड मिस्टर पवन कैन बी टेक अ सर्व इनिशियल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द पीपल लिविंग इज विलेज। दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट here. Let us see here. First of all, you understand what is a मनरेगा here. The मनरेगा aim to provide to employment to the rural household and the following activity can be initiated to generate employment opportunity and increase the income. The Manrega regarding here 100 days is a job facility provided the villages sector here. And the first point here that's important, cleaning the lake and pond. You know that is important here. Cleaning the lake and pond
Cleaning and maintenance water bodies such as the lakes and pond can be helped to improve the quality of water and make it suitable for irrigation purpose. There is increase of air income and this year. This can be lead to increased agriculture productivity, which in the turn can increase the income of the farmer. That's the most important is here. A cleaning take lake and the ponds here. The next year, additionally, cleaning to the lake and pond can be provided employment opportunity for the local people. You know that the local people here increase of income on this system here. That's important. Cleaning the lake and pond, there is a most important for the increasing of income here because there is a most important activity on here. Village side there is agriculture productivity. You know that clean the lake and pond and there is improved to quality of water to suitable irrigation purpose. That's important for the income of the farmer and there is also a good a good employment opportunity for the local people. That's important here. The next point here, village road construction. That's important here. Village road construction. The construction of village roads can improve to connectivity and accessibility within the village, making it easier to the people to the commute to be work or transport goods. You know that's important. Village road construction here. This can be helped to increase economic activity in a village and creating to more job opportunity and the boosting the income of the local people. That's important village road construction here. And the next increasing of income here, cooperative milk society means a small scale industry. That's important here. A cooperative milk society and a small scale industry. The formation of cooperatives milk society can provide a platform for the local dairy farmers to collectively sell their milk and other dairy products, increasing their income. That's important. And similarly, the establishment of a small scale industry can generate employment opportunity and create a market for the local product, which can further contribute to increasing the income of the people. That's important here. Cooperative milk society and small scale industries here. That's important. The next year, construction work. You know that the construction work there mean the construction of houses, a community center, and other infrastructure project can generate employment opportunity for the local people, helping to the boost their income. That's the construction work that's the most important for village sector here. And this can also improve their living standard of villagers and making it a unsuitable solution for the poverty's education. That's important. There is improved to living standard of the villagers. On the construction of work here, infrastructure, community center, there's a more employment opportunity for the local people and helping to boost of the income. That's important here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं सीबीएसई एनसीईआरटी के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो है क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारा क्वेश्चन है कि श्री पवन एक ग्राम प्रधान मनरेगा अधिनियम के तहत अपने गांव के लोगों की आय बढ़ाने के लिए अधिक रोजगार के अवसर पैदा करना चाहते थे। किन्हीं 3 गतिविधियों का सुझाव दे ताकि श्री पवन अपने गांव में पहल कर सकें। यानी यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। अभी के समय जो यहाँ पर सीबीएसई वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं वो कुछ हद तक इसी प्रकार के ही होते हैं, जिसमें क्वेश्चन जो होता है किसी व्यक्ति को आधार बनाया जाता है और उसके अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपको कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा। डायरेक्ट आने का तो संभावना ही आप बहुत ही कम रहता है। आप क्वेश्चन जो है बना के आते हैं या पैसेज के रूप में आते हैं। तो तिरपान स्टडी सेंटर ने भी आपके लिए इसी तरह के क्वेश्चन लाने की कोशिश किया है और ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। इसलिए सभी बच्चे जो देखते हैं वीडियो उनको यही चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पेपर तक आपको बहुत कुछ यहाँ से मिलने वाला है, हर एक क्लास का, हर एक सब्जेक्ट का। तो सब्सक्राइब करके रखिएगा तभी जो है नोटिफिकेशन मिलेगा। ये तो आपकी भलाई के लिए है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे कि श्री पवन जो है एक ग्राम प्रधान है और मनरेगा के अंतर्गत वो चाहते हैं
कि गांव के लोगों की जो है आय अधिक से अधिक बढ़े। आखिर वो क्या कार्य करें जिससे गांव के लोगों की आय के जो है वृद्धि किया जा सकता है। चलिए, प्रधान होने के नाते उनको जो ये फ़र्ज़ बन जाता है कुछ करके जो है ये गांव के लोगों के जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ मनरेगा की बात आई है। मनरेगा का अगर पूरा नाम हम देखें तो इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और मनरेगा के अंतर्गत आपको पता ही होगा कि सरकार के जो है नामांकित करने वाले व्यक्तियों को जो है 100 दिन का जो है जॉब प्रोवाइड्स की जाती है कि कोई भी व्यक्ति जो हो वेला न रहे। इसलिए सरकार जो है मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन के जॉब जो है लोगों को प्रोवाइड्स करती है। और इसका पूरा नाम है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा। ग्राम प्रधान श्री पवन अपने गांव में रहने वाले लोगों को आय बढ़ाने के लिए कई पहल कर सकते हैं। बहुत से पहल है जो किया जा सकता है। देखिए, करते नहीं है वो बात अलग है, लेकिन देखा जाए तो हम गांव में भी व्यक्तियों की इनकम को हम इंक्रीजिंग कर सकते हैं, गांव में भी हम सुविधाएं ला सकते हैं। लेकिन आज के समय में तो एक ही बात होता है, मंत्री जी इलेक्शन में बहुत अच्छे बातें बताते हैं, विकास की हर बात को जो है अपनी मुद्दा बनाते हैं, लेकिन जैसे इलेक्शन हो जाता है आराम से जो है सरकारी सुविधाओं का मज़ा उठाने लग जाते हैं। न उनको जनता याद आती है, न जनता से किया हुआ वादा आता है। जब इलेक्शन के टाइम आने लग जाते हैं तो सारे वादा और सारे बातें याद आने लग जाती है। तो ये तो हमारे भारत का प्रावधान है और ये पुराने समय से चलता आ रहा है और ये तो कभी ख़त्म होने वाला है नहीं। तो आजकल जो है उनकी नई नीति बनी हो वो है फ्री करने की बातें सब है। आज ये तकिया कलाम वर्ड बन गया है सभी राजनीतिक नेता का। जिस क्षेत्र में जितना फ्री लोग कर रहे हैं उनकी उस क्षेत्र में विजय हासिल हो रही है, क्योंकि जनता भी बहुत ही अच्छी है, वो भी फ्री का अर्थ समझ गई है अच्छी तरह से। तो यहाँ मनरेगा के अंतर्गत चलिए अच्छी बात है, सरकार ने जो है लोगों को जॉब प्रोवाइड्स किया है। और यहाँ पर पवन जी ने भी बहुत अच्छी बात रखी है कि यहाँ के लोगों को जो है किस प्रकार से जो है और भी आय बढ़ाया जाए। तो मनरेगा का उद्देश्य ग्रामीण परिवार को रोजगार प्रदान करना होता है और रोजगार के अवसर पैदा करना और आय बढ़ाने की निम्नलिखित गतिविधियां शुरू की जा सकती है, क्योंकि कहते हैं ना पहल करने से ही हमें रास्ता निकलता है। जो कोशिश करता है उसी को कामयाबी मिलता है और जो सिर्फ बैठे रहते हैं उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिलता है। तो श्री पवन जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पर प्रयास किया है। तो चलिए हमको हेल्प करते हैं और देखते हैं कि उनको हम क्या क्या चीज़ें बता सकते हैं जिनके अंतर्गत जो है वहाँ के लोगों को जो है आय में वृद्धि कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इसके अंतर्गत पहली बात तो यही आता है कि झील तालाब की साफ़ करना। देखिए, आपको पता ही होगा कि भारत में जितने पवित्र नदियां हैं, जितने नदियों की विशेषता है, वहाँ से अधिक से और भी अधिक जो है उनके पोल्यूशन करने का तरीका बहुत अधिक है। हमारे देश में जितनी नदियाँ बहती है उससे अधिक जो है यहाँ पर कूड़े करकट आज बहने लग गए हैं। देखा जाए तो ये बहुत ही गलत बात है। आज चाहिए कि हम झील तालाबों की सफाई करें, नदियों की सफाई करें, जिससे जो है हमारे देश को जो है साफ़ सुथरा देश का दर्जा मिले। सरकार सिर्फ स्वच्छ अभियान चलाती है और जब स्वच्छ अभियान का दिन होता है ना, सिर्फ झाड़ू पकड़ के रोड पे खड़ा हो जाती है, फ़ोटो खिंचवा लेती है और अगले दिन जो हेडिंग बना लेती है न्यूज़पेपरों का। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। सख्ती के साथ सरकार को रूल रेगुलेशन लागू करना चाहिए। कहते हैं भारत आज़ाद हुए कितने साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी नदियाँ जो है प्रदूषित है। सरकार ने बहुत से कार्यक्रम बनाए हैं, लेकिन फिर भी नदियाँ जो है अभी भी प्रदूषित ही है। कहीं भी देखिएगा सफ़ेद झाग ही निकल रहा होता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात आता है। और देखा जाए तो हमारा यहाँ पर जो क्वेश्चन भी है साफ़ है कि झील सफाई के जो है झील और तालाब की सफाई करके जो है इस तरह के प्रावधानों को जो है सलूशन किया जा सकता है। झीलों और तालाब जैसे जल निकाय की सफाई को रखरखाव में, पानी गुणवत्ता में सुधार करने और इसे सिंचाई उद्देश्य के लिए उपयुक्त बनाने में मदद मिल सकती है। देखिए, कोई भी देश अगर तरक्की करवाना है, क्योंकि भारत तो कृषि प्रधान देश कहलाता है, अगर हम झीलों तालाबों की सफाई करें, उनका रखरखाव करें, तो हमारे देश में जो है सिंचाई की उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। सिंचाई करके खेती की उत्पादन बढ़ाई जा सकती है। तो यहाँ पर श्री पवन को सबसे पहले तो काम यही करना चाहिए कि अगर उनके क्षेत्र में कोई झील तालाब है तो उनको सफाई करें और उन झील सफाई करके जो उनके रखरखाव की विशेषताओं के बारे में सोचें, जिससे किसानों को समय रहते पानी की व्यवस्था हो सके। अगर पानी की व्यवस्था हो जाएगा तो कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और कृषि की उत्पादन क्षमता बढ़ेगी तो उस क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों की जो है इनकम बढ़ जाएगी। तो सबसे पहली बात यही है। इससे कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सकती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है।
साथ ही झील तालाब की सफाई से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिल सकते हैं, क्योंकि सफाई ही बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं हमारे देश में बहुत से रूल रेगुलेशन बनाए हैं, ठीक है, सफाई के ऊपर न जाने कितने स्लोगन लिखे गए हैं, लेकिन इसका आज तक जो है सार्थकता सिद्ध नहीं हुई है। चलिए, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि झील तालाब की सफाई करके जो है उस क्षेत्र की इनकम बढ़ाई जा सकती है। और भी चलती है, देखते हैं पवन जी को और भी सुझाव देने की कोशिश करते हैं। दूसरी सुझाव यही हो सकता है कि गांव की सड़क का निर्माण। देखिए, गांव कहते हैं किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के लिए लाइफ लाइन होती है, और सरकार जो है गांव की सड़कों पर बहुत ही ध्यान देती है, लेकिन ये सड़कों का ध्यान सिर्फ कागजी बातों को होती है, आम क्षेत्रों में नहीं देखने को मिला है। अगर यहाँ पवन जी अगर इन कामों पर ध्यान दे दें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा और गांव वालों की इनकम बढ़ जाएगी। और किस प्रकार बढ़ेगी? गांव की सड़कें के निर्माण में गांव के भीतर कनेक्टिविटी और पहुंच में सुधार हो सकता है। कहते हैं आज लोग दूसरे शहरों से इसलिए कनेक्टिविटी में नहीं आ रखे हैं क्योंकि गांव के जो रोडें होते हैं बहुत ही बेकार टाइप के होते हैं, आधे से अधिक तो गड्ढे में से ही फंसे होते हैं। अगर हम इनको सुधार कर दें तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, जिससे लोगों के लिए काम पर जाना या माल परिवहन करना बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा, और इससे उनको जो है मुनाफा भी बढ़ेगी और काम धंधा भी अच्छा चलेगा। क्योंकि सड़कें अच्छे न होने के कारण आधा चीज़ों तो सड़कों के बीचों में ही बर्बाद हो जाती है, और शहरों तक पहुँचते पहुँचते जो उस सामान की दुर्दशा बिगड़ जाती है। सड़क होना काफ़ी महत्वपूर्ण आज के समय में रहता है, इसलिए पवन जी को सड़कों की सड़क का निर्माण, गांव के सड़कों का निर्माण करना, मरम्मत करना, उनके रखरखाव के ध्यान देना, इससे गांव का इनकम जो है बढ़ाया जा सकता है। इसे गांव में आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और स्थानीय लोगों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकता है। तो गांव की सड़कें जो होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी गांव के लिए एक लाइफ लाइन होती है। तो गांव की सड़कों का निर्माण करके यहाँ पर पवन जी जो है गांव के लोगों की आय को बढ़ा सकते हैं। आगे देखते हैं और कौन सा सुझाव जो है उनके लिए पर्याप्त है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सहकारी दुग्ध समिति लघु उद्योग। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए, गांव से तो दूध बरसता ही है और शहरों में महंगा मिलता है। गांव का दूध प्योर होता है, शहरों में पहुंचते पहुंचते अनप्योर हो जाता है, पानी मिल जाता है। अगर हम सहकारी दूध समिति लघु उद्योग हम चलाएं तो देश की भी भलाई हो सकता है और गांव के लोगों का विकास भी हो सकता है, और प्लस शहरी लोगों को जो है शुद्ध दूध भी मिलेगा। क्योंकि आज दूध जो गांव से प्योर आती है, शहरों में आते आते उसमें हद से अधिक पानी और मिलावटी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर पवन जी को ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि सहकारी दुग्ध समिति लघु उद्योग स्थापित करना। सहकारी दूध समिति का गठन स्थानीय डेयरी किसानों के समूह रूप से अपना दूध और अन्य डेयरी उत्पादन बेचने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हो सकता है। कहते हैं आज के समय में एक ही दो डेयरी होते हैं जो है अपनी मनमर्जी चलाते हैं और किसानों को वो चीज़ें नहीं देते हैं जो वो शहरों में वसूल पाते हैं। तो यहाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। देखा जाए तो स्थानीय डेयरी जो होती है, जो चल रही होती है, किसानों को पूरी मुनाफा नहीं देती है, क्योंकि मुनाफा तो कहते हैं ना प्राइवेट कंपनियों की अपनी जेब में रखने के लिए होता है। तो इसलिए चाहिए कि वहाँ पर डेयरी समितियों को और लघु उद्योगों को जो है सुधार किया जाए। इसी प्रकार लघु उद्योग की स्थापना से रोजगार के अवसर पैदा हो सकते हैं। लघु उद्योगों से जो है, क्योंकि अंग्रेज जब आए थे उन्होंने हमारे देश से लघु उद्योगों को जो है पतन कर दिया था, लेकिन आज जो समय आ गया है जब हम लघु उद्योगों की स्थापना करें और लघु उद्योग से रोजगार के अवसर पैदा करें और स्थानीय उत्पादन के लिए बाजार तैयार हो सकते हैं। क्योंकि स्थानीय उत्पादन होगा तो इसमें बाजार में भी बेचना इनके लिए आसान हो जाएगा, जो लोगों की आय बढ़ाने में योगदान दे सकता है। तो यहाँ पर सहकारी दूध समिति लघु उद्योग उत्पादन करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, लोगों को आय बढ़ाने के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। आगे देखते हैं क्या और कुछ है। आगे जो हमारे समक्ष आया है निर्माण कार्य। कहते हैं निर्माण कार्य काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आपको पता है कि हम निर्माण कार्य से भी जो है आय को बढ़ा सकते हैं। जैसे घरों, समुदाय केंद्रों, अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का जो निर्माण स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सकते हैं। घरों का आप निर्माण करवाइए, समुदाय केंद्र का निर्माण करवाइए, बुनियादी ढांचा वाला परियोजनाओं का तैयार कीजिए, जिससे उनकी आय में बढ़ने में मदद मिलेगी। इससे ग्रामीणों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। कहते हैं गांव के क्षेत्रों में इसलिए जो उनके जीवन स्तर में सुधार नहीं है क्योंकि वो पिछले 100 सालों से आए हुए रीति रिवाजों को लेकर चल रहे हैं। अगर
गाँव में विकास होगी, गाँव में पक्के छत होंगे, बिजली होगी, सुविधाएं होंगी, निर्माण कार्य होगा, तो हो सकता है कि उनके जीवन के स्तर में भी सुधार हो सकता है और जिससे गरीबी कम करने का भी स्थानीय समाधान बन सकता है। क्योंकि भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती आज के समय ये भी है, गरीबी भी है। और यहाँ पर अगर छोटे छोटे क्षेत्रों में, छोटे छोटे स्तरों पे अगर अच्छा कदम उठाया जाए तो इसके देश की जो है गरीबी रेखा कमेगी और देश प्रगति भी होगी। यहाँ पर पवन जी ने जो बीड़ा उठाया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इन 4 पॉइंटों के अंतर्गत वो उस अपने क्षेत्र में कार्य करवा सकते हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में विकास भी होगी, लोगों को सुविधा भी मिलेगा, रहन सहन में विकास के साथ साथ वहाँ के लोगों के इनकम में भी वृद्धि देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण 4 पॉइंट थे पवन जी के लिए, जिसके कारण वो अपने क्षेत्र के लोगों को जो है इनकम बढ़ा सकते हैं। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर। और क्वेश्चन हियर, एग्रीकल्चर गिव अ बूस्ट to the industrial sector. Justify the statement. You know that's important here. Agriculture give a boost to the industrial sector. Agriculture give a boost to the industrial sector in the following way. Let's see the following way here. The first of all, there is give a raw material supply. You know that's important. Raw materials supply here. Agriculture is the significant source of raw material for various industries, such as food, processing, and textile and paper. Means, a raw material is the most important for industrial purpose here. There is a food processing, textile, and paper. For instance, the cotton industry lies as a heavier on the production of cotton from the agriculture field. And similarly, food processing industrial on the agriculture product such as a fruit, vegetables, and cereals. That's important here. And thus a healthy agriculture sector can ensure a steadily to supply of raw material for the industry, which in the turn can boost their productivity and growth. That's important here. Healthy agriculture sector can ensure a steadily supply of raw materials for industries, and which in the turn can boost their productivity and growth here. That's important. Let's see second point here. The second point asked here, a market expansion. You know that is important here. The market expansion. Agriculture provide a vast market for industry products here. For example, the use of agriculture machinery such as tractors, tillers, and the harvester creates as the demand for industry goods including steel, plastics, and rubber. That's important here, market expansion here. And moreover, the growth of agriculture sector increase the purchasing power of farmers, and who become a significant consumer group for industry products such as the consumer goods and automobiles and appliances. That's important here. The market expansion. And the next year, employment generations here. The employment generations is important. Agriculture is a labor intensive sector that grants employment opportunity for a significant population in India. That's important. A healthy agriculture sector can increase the income level of farmers and agricultural workers, and which in the turn can create a demand for industrial products and service. That's important here, employment generations here. And additionally, there are agriculture-related industries such as food processing and agrochemicals also create a job opportunity, especially in a rural area. That's important. Thus, a robust agriculture sector can help to reduce unemployment and poverty, which are a major challenge in India. That's important here. यहाँ पर जो हम कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं CBSE NCERT के सामाजिक विज्ञान, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से ये क्वेश्चन जो हमारा अगला है। और हमारा अगला क्वेश्चन ये कहता है कि कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देती है। कथन की पुष्टि करें। देखिए, कृषि औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। आपको इस बात से मैं अवगत करा दूं कि कोई भी उद्योग बिना रॉ मटेरियल का हो ही नहीं सकता, यानी कृषि के बिना
उद्योगों का कल्पना भी नहीं की जा सकती है। उद्योग तभी तक उद्योग है जब तक कृषि है। और मैं आपको बता दूं, कोई भी देश अगर विकसित है, अगर वहाँ पर उद्योग लगी हुई है तो वहाँ पर कृषि भी की जाती है। आपको पता ही होगा कि हमारे देश जो है 250 साल तक गुलाम बनी, अंग्रेजों के अधिकार में गया, तो कहीं ना कहीं हमारे देश से उत्पन्न होने वाले रॉ मटेरियल के ऊपर अंग्रेजों को काफ़ी आकर्षित किया। और आपको तो पता ही होगा कि इसमें से मसाले काफ़ी महत्वपूर्ण थे। देखा जाए तो वास्को डी गामा जो भारत में आया था, पहली बार जब यहाँ से मसाले की खेप लेके गया था अपने देश, तो वहाँ पर उसको 3 गुनी मुनाफा हुआ, इसलिए वो दोबारा ललायत हुआ और फिर भारत की तरफ रुख किया। और इससे करते करते जो है धीरे धीरे सभी देशों को पता चला और बाद में जो है ब्रिटिश यहाँ पर आकर अपना अधिकार स्थापित किए। और ये भी पहले व्यापार करने के उद्देश्य से भारत में कदम रखे थे, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ पर राजनीतिक माहौल कुछ अलग ही है तो इन्होंने जो है यहाँ पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो देखा जाए कोई भी औद्योगिक विकसित करने के लिए कृषि का होना बहुत काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन भी यही बताता है, कृषि उद्योग के क्षेत्र को बढ़ावा देती है, इस बात को हमें पुष्टि करना है। तो कृषि निम्नलिखित प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देता है। सबसे पहली बात तो आता है कच्चे माल की आपूर्ति। जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रियों में सामान का उत्पादन हो रहा है, सारे के सारे जो है कच्चे माल की आपूर्ति के कारण ही संभव हुआ है। कृषि विभिन्न उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण, कपड़ा और कागज के लिए कच्चे माल का एक महत्वपूर्ण स्रोत माना जा सकता है। यानी कच्चे माल की आपूर्ति जो होती है कृषि विभिन्न उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण हो, कपड़ा हो, कागज हो, सभी के लिए जो है कृषि से उत्पन्न होने वाले कच्चे पदार्थों का उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कपास उद्योग कृषि क्षेत्रों में कपास के उत्पादन बहुत अधिक निर्भर करता है, क्योंकि कपास उद्योग जो है कृषि के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कपास पर बहुत काफ़ी निर्भर है। कहते हैं कोई भी चीज़ हो, कहते हैं जितने भी गेहूं से बनने वाले हो, चावल से बनने वाले मटेरियल्स हो, सब के सब कृषि पर ही आश्रित होते हैं। मसाले भी हमें कृषि से ही प्राप्त होती है। इस तरह खाद्य प्रसंस्करण जो है उद्योग फसल, सब्जी और अनाज जैसे कृषि उत्पादों पर निर्भर है। जितने भी हैं, फलें हो, सब्जियां हो, अनाज हो, सभी कृषि उत्पाद पर निर्भर हैं और इससे उद्योग को जो है काफ़ी बढ़ावा मिलता है। इवन देखें तो इस प्रकार एक स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र उद्योग के लिए कच्चे माल की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर सकता है, जो बदले में उनकी उत्पादकता और विकास को बढ़ावा दे सकता है। तो कच्चे माल की आपूर्ति किसी भी उद्योग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है। उसके पश्चात आता है बाजार का विस्तार। कहते हैं बाजार का विस्तार भी कहीं ना कहीं कृषि के अंतर्गत ही देखने को मिला है। कृषि औद्योगिक उत्पाद के लिए एक विशाल बाजार प्रदान करता है, क्योंकि कृषि से ही बड़े बड़े बाजार का जो है सूत्रपात होता है और बाजार का सूत्रपात होता है उद्योग से, और उद्योग का जो होता है सूत्रपात कृषि से होता है। तो कहते हैं एक चक्र है ये। उदाहरण के लिए ट्रैक्टर, टिलर्स और हार्वेस्टर जैसी कृषि मशीनरी का उपयोग स्टील, प्लास्टिक और रबर सहित औद्योगिक वस्तुओं की मांग पैदा करती है। तो देखा जाए तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र की वृद्धि से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ती है, जो उपभोक्ता वस्तु और ऑटोमोबाइल और उपकरण जैसे औद्योगिक उत्पाद के लिए एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता समूह बन जाता है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे जो उपभोक्ता वस्तु हो, ऑटोमोबाइल हो, उपकरणों हो, जैसे औद्योगिक उत्पाद के लिए एक महत्वपूर्ण भोग वस्तु बना देता है। तो कहते हैं बाजार विस्तार के लिए भी कृषि काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है रोजगार सृजन। देखिए, कहते हैं अगर भारत में रोजगार का अगर अवसर बढ़ाना है तो कृषि को हमें बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन कृषि के लिए भी अब जोत जो है कम पड़ती चली जा रही है। अब कृषि पे भी भारत को आश्रित होना बहुत ही कठिन जो है दुष्कर्म कार्य लग रहा है। लेकिन रोजगार का सृजन देखा जाए तो कहीं हद तक जो है कृषि से ही की जा सकती है। कहते हैं कृषि एक श्रम प्रधान क्षेत्र है जो भारत में एक महत्वपूर्ण आबादी के लिए रोजगार के अवसर पैदा करता है। यानी देखा जाए तो आज भी भारत के जितने भी आबादी है कृषि पर ही आश्रित है और कृषि उनके महत्वपूर्ण रोजगार का जो है रास्ता साफ करता है। एक स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र किसानों और कृषि श्रमिकों के आय स्तर को बढ़ा भी सकता है, जो बदले में औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं की मांग पैदा कर सकता है। तो देखा जाए तो एक स्वास्थ्य कृषि क्षेत्र किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए आय स्तर को बढ़ा सकता है, जो बदले में एक औद्योगिक उत्पादों और सेवाओं की मांग भी पैदा करता है।
इसके अतिरिक्त कृषि से संबंधित उद्योग जैसे खाद्य प्रसंस्करण और कृषि रसायन भी रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। देखा जाए तो बात काफ़ी महत्वपूर्ण है कि कृषि ने हर क्षेत्र में अपना विकास जो है सुनिश्चित किया है, और कृषि के कारण ही जो है रोजगार का जो है सृजन भी हुआ है। देखा जाए जब तक हम कृषि पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे, भारत जो है गरीबी जैसी समस्याओं से जो है बाहर नहीं निकल पाएगा। और कृषि जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है उद्योगों के लिए। इस प्रकार एक मजबूत कृषि क्षेत्र बेरोजगारी और गरीबी को कम करने में मदद कर सकता है, जो भारत पर मुख्य चुनौतियां हैं। कहते हैं भारत में जो चुनौतियां यहाँ पर गरीबी और बेरोजगारी की समस्या है, उनको कई हद तक जो है कृषि से ही किया जा सकता है ठीक। भारत में कृषि पर जोर देने की ज़रूरत है। सरकार को जो है कृषि को प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है, क्योंकि कृषि से जो है पेट भरने की सारे वस्तुएं उपलब्ध होती है, और संसार जो है सिर्फ इन्हीं के लिए कार्यरत होती है। इसलिए कृषि पर अगर ध्यान दिया जाए तो हम सभी देशों में से जो है पावरफुल बन सकते हैं। हथियार से हम पावरफुल बने चाहे ना बने, लेकिन कृषि से हम बन सकते हैं। आज देखा जाए तो लोग युद्धों में कृषि क्षेत्र को जो है नष्ट करते चले जा रहे हैं, जो ना तो उनके कल्याण के लिए है न देश के कल्याण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दैट इज इंपॉर्टेंट हियर। द क्वेश्चन हियर, tertiary sector activity help in the development of primary and secondary sector. Estimative to your answer, you know that substanding your answer, that's important. The tertiary sector activity help in the development of primary and secondary sector. You know that in any country, several services such as the hospitals, educational institution, post and telegraph service, police station, court, village, administrative office, municipality corporation, defense, transport, bank and insurance company are required, and this can be considered basic service. You know that's important. In any country, several services such as the hospital, that's important. In a development country, the government must take a responsibility for the provision of this service. The development country, the government must take a responsibility for the provision of this service. The development of agriculture and industry lead to the development of service such as a transport, trade and storage. That's important. The development of agriculture and industry lead to the development of service such as a transport, trade and storage. The greater the development of primary and secondary sector, the more would be a demand for such a service. That's important. यहाँ पर जो हम पेपर कर रहे हैं क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का, और ये पेपर काफ़ी महत्वपूर्ण है हर एक बच्चों के लिए, और ये CBSE NCERT पे आधारित है। हमारा अगला क्वेश्चन जो आया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, और क्वेश्चन है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास में मदद करती है। अपने उत्तर को प्रमाणित करें। देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको पता होना चाहिए कि चाहे प्राथमिक हो, माध्यमिक क्षेत्र हो या तृतीयक क्षेत्र हो, सभी एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। यानी यहाँ क्वेश्चन साफ करता है कि द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियाँ यानी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियाँ यानी तीसरी क्षेत्र की गतिविधियाँ जो है प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों के विकास में मदद करती है। तो जर्नल सी बात है, अगर मान लेते हैं कि तीसरी जो है क्षेत्र जो है, मान लीजिए हॉस्पिटल हो गया, ये सारे के सारे अदालतें सब कुछ हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं इस सब के लिए प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास भी सुनिश्चित होती है, क्योंकि एक क्षेत्र अगर विकास करेगा तो ऑटोमेटिक जो है दूसरा क्षेत्र विकास करेगा, क्योंकि ये सारे जो होते हैं एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होते हैं, और ये बातें काफ़ी महत्व रखता है। देखा जाए तो किसी भी देश में अस्पताल है, शैक्षिक संस्थान है, डाक और तार सेवाओं, पुलिस स्टेशन, अदालतें, ग्राम प्रशासनिक कार्य, नगर निगम, रक्षा, परिवहन, बैंकों और बीमा कंपनी जैसी कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, और इन्हें बुनियादी सेवा माना जा सकता है, और ये सब के सब जो हैं तृतीय क्षेत्रों के गतिविधियों के अंतर्गत आते हैं। एक विकासशील देशों में सरकार को इन सेवाओं को प्रावधान की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। यानी देखा जाए तो ये सारे क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सरकार को इस बात के लिए जिम्मेदारी भी लेने की आवश्यकता रह जाती है।
देखा जाए तो कृषि और उद्योग के विकास से परिवहन, व्यापार और भंडार जैसी सेवाओं का विकास होता है। तो ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक चीज़ पे दूसरा चीज़ डिपेंडेबल है। और कृषि और उद्योग का विकास से जो है परिवहन का भी विकास होगा, व्यापार का भी विकास होगा और भंडार जैसी सेवाओं का भी विकास होना सुनिश्चित करेगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो एक के विकास के कारण दूसरा का विकास होता है और दूसरे के विकास के कारण जो है पहले का विकास होता है। तो ये सारे एक तरह से चैन बने हुए हैं। कहते हैं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र का विकास जितना अधिक होगा, ऐसी सेवाओं की मांग उतनी ही अधिक होगी। अगर प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों का विकास जितना अधिक होगा, ऐसे में सेवाओं की मांग भी अधिक होगी। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन एग्जाम व्यू से बनता है। कहते हैं कोई भी चीज़ एक दूसरे पर आश्रित होता है। अगर एक का विकास होगा तो दूसरा ऑटोमेटिक विकास कर जाएगा। बट नेक्स्ट क्वेश्चन अराइव हियर, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। The Indian Constitution provides a 3 list to be distribute the legislative power. State any 2 subjects that are included in the union list. In which list the subject education is included and why? The Indian Constitution has a 3-folded distribution legislative power here, which contain 3 lists. You know that the 3 lists is the most important here. The 3 lists are the union list, the state list and the concurrent list. Union list, state list and concurrent list. The subjects that are included in the union list are those that are under the exclusive jurisdiction of the union government. That's important. You know that some of the subjects that are included in the union list are, the union list is subjected here, defense of the country, foreign affair and relation, banking, currency and coinage, railways and air transport, post and telegraph, census and statistics, copyright, patents and trademark. This list is the union list. This list subjected to the union list here. That's the defense of country, foreign affair, banking, currency and so on. That's important. The subject education come under the concurrent list. The subject educations come under to the concurrent list, which means that both the union government and the state government have to power to make a law on the subject. The concurrent list is contain a subject that are a common interest to both the union and the state government. That's important here. The education come under to the concurrent list. That's important here. यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन पेपर क्लास 10वीं CBSE NCERT के अंतर्गत सोशल साइंस का, और ये क्वेश्चन पेपर जो है कई मायने में महत्वपूर्ण है। और इसी पेपर के अंतर्गत हमारा अगला जो क्वेश्चन आया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन जो है भारतीय संविधान विधायी शक्ति के वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान करता है। संज्ञेय सूची में शामिल कोई 2 विषय बताइए और शिक्षा विषय किस सूची में शामिल है और क्यों। ये क्वेश्चन समझ में आपको आया? ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम व्यू से। क्वेश्चन एग्जामिनर इसी प्रकार से आपको पूछेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे। क्वेश्चन देखिए फिर एक बार कि भारतीय संविधान विधायी शक्ति के वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान ने विधायक शक्तियों को वितरित करने के लिए 3 सूची प्रदान किया है और ये 3 सूची है संज्ञेय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और इसमें से पूछा गया है कि संज्ञेय सूची में शामिल कोई 2 विषय बताएं और शिक्षा विषय किस सूची में शामिल है। हमसे यहाँ 2 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 3 सूची के अंतर्गत पहला संज्ञेय सूची में 2 विषय बताने कौन कौन से विषय हैं और शिक्षा किस विषय में शामिल है और क्यों किया गया ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चनों को समझना ही एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। अगर क्वेश्चनों को आप नहीं समझ पाते हो तो आंसर भी आप सही रूप में देने में समर्थ नहीं रह पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही समझना महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में विधायी शक्तियों के 3 गुण वितरित, जिनमें 3 सूचियां दी गई है: संज्ञेय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संज्ञेय सूची में शामिल विषय में वो है जिसके सरकार के विषय अधिकार क्षेत्र के अंदर आते हैं। देखिए संज्ञेय सूची में कौन से विषय को सम्मिलित किया गया है?
तो इसके अंतर्गत बताई गई है कि संघीय सूची में शामिल विषय वो है जो केंद्र सरकार के विशेष अधिकार के अंतर्गत आ जाता है, यानी केंद्र सरकार के जो अंतर्गत आता है उन सब्जेक्टों को सम्मिलित किया गया है। अब चलिए देखते हैं कि संघीय सूची में केंद्र सरकार के कौन से अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं। और देख सकते हैं यहाँ पर कि संघीय सूची में शामिल ये सारे विषय हैं जो केंद्र सरकार के क्षेत्र में आती हैं। देश की रक्षा करना, विदेशी मामलों एवं संबंध स्थापित करना, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का का संचलन करना, रेलवे एवं हवाई परिवहन के ऊपर अपना ध्यान रखना, डाक एवं तारे सेवाएं देना, जनसंख्या एवं सांख्यिकीय, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, ये सारे के सारे जो होते हैं केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं और ये संघीय सूची में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर आपसे 2 पूछे गए थे और हमने आपके समक्ष जो है 7 रख दिए हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। देश की रक्षा, विदेशी मामले एवं संबंध, बैंकिंग, मुद्रा और सिक्का, रेलवे एवं हवाई परिवहन, डाक एवं तार, जनसंख्या एवं सांख्यिकीय, कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो केंद्र सरकार के अंतर्गत सम्मिलित है। और देखा जाए जो दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था शिक्षा के अंतर्गत, तो कहते हैं शिक्षा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, यानी ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है। यानी देखा जाए तो शिक्षा को जो है केंद्र सरकार के अंतर्गत भी रखा गया है और राज्य सरकार के अंतर्गत भी रखा गया है, क्योंकि दोनों के पास जो है इस विषय पर कानून बनाने की शक्ति है और इसको रख रखाव के लिए जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलके शिक्षा के स्तर को ऊंचा कर सकती है। लेकिन भारत में सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इसको केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास अधिकार है, लेकिन दोनों के दोनों जो है कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो देखा जाए तो यहाँ पर संविधान में काफ़ी महत्वपूर्ण बात रखी गई है कि शिक्षा को केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास दिया गया है कानून। समवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए सामान्य हित के हैं, यानी समवर्ती सूची में उन विषयों को सम्मिलित किया गया है जो केंद्र और राज्य सरकार दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, दोनों को जो है सामान्य अधिकार देते हैं, शक्तियाँ देते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन भली भांति समझ गए होंगे, हर बात जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो किसी प्रकार वीडियो और भी आपको प्राप्त होता रहे तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर भी कीजिए, क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर का यही में मकसद है कि ये वीडियो हर एक बच्चे तक पहुँचे और इसमें आप जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर की मदद कर सकते हो। इसलिए शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर है और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है, व्हाट्सएप स्टेटस पर लगा देना है। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, तो जर्नल सी बात है दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा तभी दूसरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर हर समक्ष आपके लिए जो है अग्रसर है, इसे सोचिए नहीं, विचार न कीजिए, अभी त्रिपाण स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव कीजिए।